উন্নয়নের কাণ্ডারি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়। ভারত মাতা কি। আরে অমিত শাহজি এত কষ্ট করে এখানে এসেছেন, আসামের ডিব্রুগড় থেকে এখানে এসেছেন, এত আস্তে আওয়াজে হবে না, জোরে বলুন ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী, নরেন্দ্র মোদী, নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, অমিত শাহ, অমিত শাহ, ভারত মাতা কি। বন্ধুগণ, আজকে আমাকে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আপনারা প্রতিদিনই প্রায় আমাকে শোনেন, হয় টিভিতে না হয় আপনাদের সামনে। আজকে মূল বক্তা মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি, এবং আমরা সৌভাগ্যশালী যে আজকে হরিরামপুর বিধানসভার পাথরঘাটার পত্রার মতো ছোট জায়গাতে, খুব ছোট গ্রাম, সেখানে মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজি এসেছেন। কোন গৃহমন্ত্রী? যে ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির স্বপ্ন পূরণ করেছেন, কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারাকে বাতিল করে দিয়েছেন, তাকে জোরে হাততালি দিয়ে আপনারা স্বাগত জানাবেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মাঝে মাঝে বলেন বিজেপির নেতারা বহিরাগত। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আর তার দলবলকে বলতে চাই যে দেখুন, ভারতবর্ষকে এখন আপনারা চেনেননি। ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি একজন বাঙালি, তার স্বপ্ন ছিল যে কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা উঠে যাবে, আর সেটা যখন সফল করেছে, সেটা আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সফল করেছে, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় অমিত শাহজি সফল করেছেন। এটা হচ্ছে ভারতবর্ষ। আজকে তাই তৃণমূল কংগ্রেস কোন বুদ্ধি না পেয়ে এখানে হারু মিত্রকে প্রার্থী করেছে। কি চেনেন তো? হারু মিত্রকে চেনেন তো আপনারা? প্রার্থী করেছে তাকে। তা তিনি নিজের পরিবার ছাড়া কিছু বলেনি। আর মোদিজির মতো আমরা বলি যে আমাদের পরিবারের 1 পয়সার উন্নতি হয়েছে 5 বছরে, খুঁজে দেখান। সুকান্ত মজুমদারের, মোদিজির যেমন 140 কোটির পরিবার, ওরকম বালুরঘাট লোকসভার প্রত্যেকটি ব্যক্তি আমার পরিবারের সদস্য, আপনারা আমার পরিবারের সদস্য, পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি মানুষ আমার পরিবারের সদস্য। যাকে মন্ত্রী করেছেন তিনি এখন ভোটের লোভে বলছেন মেডিকেল কলেজ খুলে দেবেন, অথচ 8 বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে, এখানে একটা ইউনিভার্সিটি, একটা ইট গাঁথতে পারেননি, একটা পায়খানা বাথরুম তৈরি করতে পারেননি বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি এখন মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন যে তিনি নাকি এখানে মেডিকেল কলেজ খুলে দেবেন। পরিষ্কার বলে দিয়ে ওই ভাউতাবাজিতে যাবেন না। মেডিকেল কলেজ খোলার জন্য আমি চিঠি দিয়েছিলাম মুখ্যমন্ত্রীকে। আমি চ্যালেঞ্জ করছি বিপ্লব বাবুকে, যদি ক্ষমতা থাকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পারমিশন নিয়ে আসুন, দিল্লি সরকারের কাছ থেকে 200 কোটি, 300 কোটি, 400 কোটি যত টাকা লাগবে সুকান্ত মজুমদার এনে দেবে। মাননীয় অমিত শাহজির সামনে কথা দিয়ে গেলাম, আমরা গ্যারান্টি দিচ্ছি। আর দৌলতপুরে নেতা মন্ত্রীরা এতবার আসে, একটা হসপিটাল হয়নি। দৌলতপুর স্টেশন আমরা লাইট লাগিয়ে দিয়েছিলাম, ভেঙে দিয়েছিল। আমাকে ওখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা এসে বললেন, দাদা আমাদের স্টেশনের লাইট ভাঙা। আমি লাগিয়ে দিব, কিন্তু আপনাদেরকে রক্ষা করতে হবে। কথা দিয়েছিলাম। দেখুন দৌলতপুর স্টেশন অন্ধকার ছিল, কয়েক মাস আগে তাকে আলোয় আলোকিত করে দিয়েছি। আমরা এই উন্নয়নে বিশ্বাস করি। আপনারা এক পা আগালে পরে আমরা আগামী দিনে আরো এগোবো। তাই আমরা বারবার বলছি যে একদিকে আপনাদের ন্যাশনাল হাইওয়েকে 4 লেন বানানো হোক, বা এখান থেকে দিল্লির ট্রেন চালানো হোক, কলকাতার ট্রেন চালানো হোক। শুধু তাই নয়, সব কাজ আমরা শুরু করে দিয়েছি। অবশিষ্ট আছে ইটাহার আর গুঞ্জরিয়া, ওটাও কথা দিচ্ছি এবার আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে সেই কাজও আমরা শুরু করব। বুনিয়াদপুর কালিয়াগঞ্জ শুরু করব, হিলি বালুরঘাট শুরু হয়ে গেছে, সমস্ত কিছু আমরা শুরু করব এবং আমরা করব। তাই আমি আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করব না। মুখ্যমন্ত্রী কয়েকদিন আগে এসেছিলেন, কত ভিড় ছিল দেখেছেন তো? আরে ওর থেকে তো আমাদের নমিনেশনে বেশি ভিড় ছিল, কি তাই কিনা? তার ভিড়, তার থেকে বেশি ভিড় নমিনেশনে ছিল। মুখ্যমন্ত্রী এখানে এসে বলে গেছেন আমি আর শুভেন্দু অধিকারী নাকি কুলাঙ্গার। মুখ্যমন্ত্রী, কুলাঙ্গার তাকে বলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে গরু পাচার করে, পাথর পাচার করে, কয়লা পাচার করে, তাকে কুলাঙ্গার বলে। ভালো করে দেখুন, আপনার আশেপাশে কুলাঙ্গার আছে। তাই
আজকে আবার আমাদেরকে জবাব দিতে হবে 19 সালে যেভাবে আপনারা জবাব দিয়েছিলেন। মাননীয় অমিত শাহজি আসছেন, 16 তারিখে মোদিজি আসবেন, জবাব আমাদেরকে দিতে হবে। এই সিট আমরা নরেন্দ্র মোদীকে উপহার দেবো, কি দেবো তো? দেবো তো? তাহলে দু হাত তুলে প্রতিজ্ঞা করে আমার সাথে বলুন, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। সবাইকে নমস্কার। মাননীয় গৃহমন্ত্রী এবার ভাষণ দেবেন, ওনাকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে রাখার জন্য। জোরে হাততালি দিয়ে ওনাকে স্বাগত জানান। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बालूरघाट वालों की आवाज को क्या हो गया है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? बंगाल में 30 सीटें पार करनी है या नहीं करनी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। सभी माताएं बहनें हाथ उठाएं, पीछे तक युवा हाथ उठाए, पीछे भी हाथ उठाओ जरा। विजय के विश्वास की मुट्ठी बीचो, ममता जी को जवाब देने के विश्वास की मुट्ठी बीचो और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और बालूरघाट के लोकप्रिय संसद सदस्य डॉक्टर सुकांत मजमूदार जी, उत्तर मालदा के श्रीमान खगेन मुर्मू जी, श्री स्वरूप चौधरी जी, उज्जवल दत्ता जी, मंगल पांडे जी, अमिताभ चक्रवर्ती जी, सुवेंदु सरकार जी, सत्यनाथ रॉय जी, डॉक्टर अशोक कुमार लाहड़ी जी, बुधराय टुडू जी, चिन्मय बर्मन जी, जुयाल मुर्मू जी, गोविंद मंडल जी, शंकर चक्रवर्ती जी, अभिषेक सिंधानिया जी, और आज इस सभा में इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर पड़े लोग ही लोग दिखाई पड़ते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैंने उतरते ही अध्यक्ष जी को कहा कि भाई जो भीड़ बालूरघाट की सभा में आई है, अब करने को क्या बचा है? चुनाव आपका यही समाप्त हो गया है भाजपा जी की। भाई और बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब बोल्ला काली मंदिर, देवी बुरा काली, नरवरिया शिव मंदिर और देवी दुर्गा को चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब यहां आया हूं तब शहीद चुरका मुर्मू, जिन्होंने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भारत के जवानों की मदद करते हुए शहीदी करी, उनको भी प्रणाम करता हूं। और बंगाल की इस वीर भूमि पर आया हूं तब अनगिनत स्वतंत्र सेनानियों के साथ साथ सुभाष बाबू, नेताजी और हमारे भाजपा के स्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की। ये बालूरघाट में अभी बरसी स्नान चल रहा है ना भाई? चल रहा है, नहीं चल रहा है? स्नान कर कर शिव जी की पूजा करते हो ना, मगर याद रखना, स्नान कर कर शिव जी की पूजा कर कर 19 तारीख को कमल के निशान पर बड़े जुनून के साथ बटन दबाना है। दबाएंगे क्या? दबाएंगे। ये पूरे क्षेत्र के अंदर जो दारुण गरीबी फैली है,
इसके लिए अगर कोई जिम्मेदारी है तो केवल और केवल कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस है। आप मालूम पड़ गए, यहां का दही, तांत की साड़ी और मुखड़ा शिल्प, तीनों को अगर विश्व प्रसिद्ध करना है तो यहां बंगाल में भी भाजपा सरकार बनानी है और मोदी जी को भी लाना है। भाई और बहनों, 2014 में हम आए थे, बंगाल की जनता ने सिर्फ 2 सीटें दी थी। फिर 19 में आए, आपने 18 सीटें दी। 19 में आपने 18 दी तो मोदी जी 300 से ज्यादा सीट से प्रधानमंत्री बने। अब 2024 में 18 से बढ़ाकर 30 करनी है और 370 पार करना है। मुझे बताओ, हो जाएगा ना? पक्का हो जाएगा? भाई और बहनों, हमारे सोनार बांग्ला को ममता दीदी ने बम धमाकों से गूंजता कर दिया है। सोनार बांग्ला को कट मनी से परेशान किया है, भ्रष्टाचार से परेशान किया है। और सशक्त भारत अगर बनाना है तो सशक्त बंगला बनाना पड़ेगा, सशक्त बंगाल बनाना पड़ेगा। भाई और बहनों, बेलूर घाट के भाई बताए मुझे, जहां तक घुसपैठ चालू है, बंगाल सशक्त हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है क्या? घुसपैठ बंद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलो, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या ममता दीदी घुसपैठ बंद करेगी क्या? करेगी क्या? वो घुसपैठ बंद नहीं करेगी, क्योंकि वो घुसपैठ यही तो उनकी वोट बैंक है या नहीं है? तो घुसपैठ बंद कर सकते हैं नरेंद्र मोदी, और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। भाई और बहनों, आसाम की समस्या घुसपैठ की ऐसे ही थी। आसाम की जनता ने निर्णय किया, भाजपा की सरकार बनाई, और अब आसाम बॉर्डर से एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर सकता। घुसपैठ को हमने बंद कर दिया है। और मैं आपको मोदी गारंटी कहने आया हूं, 30 सीटें पार करा दो, बंगाल में भाजपा सरकार बना दो, परिंदा भी पैर नहीं मारेगा, किसी को घुसपैठ हम नहीं करने देंगे। भाई और बहनों, ये बेलूर घाट वाले इतने सारे लोग हैं, मुझे बताइए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये ममता दीदी, ये कांग्रेस पार्टी, ये कम्युनिस्ट, ये सभी इकट्ठा मिलकर 70 साल से राम मंदिर को अटका रहे थे, भटका रहे थे, लटका रहे थे। 17 तारीख को रामनवमी है, रामलल्ला का बर्थडे है, और मोदी जी ने 5 ही साल में केस का चुकादा भी आ गया, भूमि पूजन भी हो गया, और 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया। 500 साल के बाद रामलल्ला अपने भव्य घर के अंदर अपना बर्थडे मनाएंगे, रामनवमी बनाएंगे। भाई और बहनों, ये पार्टियों ने तुष्टीकरण के लिए राम मंदिर को अब तक रोक कर रखा था। मैं बंगाल की भूमि पर आया हूं, मुझे बताइए, बंगाल की भूमि पर मैं आया हूं, श्यामा प्रसाद जी ने धारा 370 हटाने के लिए अपनी जान दे दी थी। भाई और बहनों, बेलूर घाट वालों, मुझे बताओ, ये जो कश्मीर है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है?
370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस, तृणमूल सभी लोग विरोध करते थे। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का बना दिया। भाई और बहनों, ये तुष्टीकरण के कारण इन लोगों ने 370 को संभाल कर रखा था। मोदी जी ने उसको उखाड़ कर फेंक दिया। ये 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम करे हैं। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर लाया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त चावल देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 12 करोड़ शौचालय बनाए। 4 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया। 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया और 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। यहां बेलूर घाट वाले आए हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने देश भर में एक योजना करी है कि 5 लाख तक का सभी हेल्थ का खर्चा, स्वास्थ्य का खर्चा मोदी जी उठा रहे हैं। देश भर के गरीबों को इसका फायदा मिल रहा है, बंगाल को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ममता दीदी आयुष्मान भारत योजना को नीचे तक नहीं पहुंचा सकती। भाई और बहनों, मैं आज मोदी गारंटी करके देने आया हूं, एक बार 300 पार कर ममता की सरकार को उखाड़ दो, सभी का 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त हो जाएगा। आपके चावल में कोई कटौती नहीं कर पाएगा, कोई कटमनी नहीं ले पाएगा, कोई कोयले की तस्करी नहीं कर पाएगा, कोई गौ तस्करी नहीं कर पाएगा और कोई घुसपैठ भी नहीं कर पाएगा। ये बंगाल पश्चिम बंगाल के लोगों का है, इनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। भाई और बहनों, मुझे बताओ, 3 तलाक हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए था? जोर से बोलो, माताओं बहनों बोलो, हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए? ममता दीदी नहीं चाहती 3 तलाक हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 तलाक को समाप्त कर मुस्लिम बहनों के साथ न्याय करने का काम किया है। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आज भी कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ होना चाहिए, यूसीसी नहीं होना चाहिए। भाई और बहनों, वो तो छोड़िए, वो अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं, ऊपर तस्वीर थाईलैंड की लगाते हैं। पूरे भारत में एक भी तस्वीर नहीं मिलती इनको, थाईलैंड की तस्वीर लगाते हैं। मगर क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि राहुल बाबा बार बार वहां वैकेशन करने के लिए चले जाते हैं, वैकेशन करने के लिए। भाई और बहनों, ये पार्टियों का हमारे साथ, देश के गरीबों के साथ, देश की जनता के साथ कोई सरोकार नहीं। और मैं आज बंगाल में चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार आया हूं। मैं बंगाल की जनता को हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। हमने एक कानून पारित किया है सीएए का। ममता दीदी बंगाल के लोगों को गुमराह कर रही है। ये कह रही है कि आपने एप्लीकेशन किया तो आपका नागरिकता चला जाएगा। अरे नागरिकता है ही नहीं ममता दीदी, आपको क्या मालूम है? मैं आज आपको कहने आया हूं, डरे बगैर जितने भी शरणार्थी आए हैं सीएए में एप्लीकेशन करे, किसी पर कोई केस नहीं होने वाला है, कोई मुकदमा नहीं होने वाला है। ये मोदी सरकार का कानून है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। और ममता दीदी, आपको जितना विरोध
विरोध करना हो करो, हम जितने भी हिंदू बौद्ध सिख शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देंगे, ये हमारा वादा है। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, जो बंगाल से हिंदू सिख बौद्ध शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता मिलती है, आपको क्या तकलीफ हो रही? एक और घुसपैठियों को लाल जाजम बिठाकर स्वागत करती हो, रोहिंग्या का स्वागत करती हो, और दूसरी ओर जो हिंदू बौद्ध सिख शरणार्थी आए हैं उनको गुमराह कर रही हो। दीदी, आपकी दाल नहीं गलने वाली है। मोदी जी ने रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं, बंगाल के सारे शरणार्थी भय मुक्त होकर अप्लाई करें। आपका इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा है, आपका अधिकार इतना ही। सभी लोगों ने अप्लाई करना चाहिए। भाई और बहनों, तुष्टीकरण की सीमा करने वाली ये पार्टी कुछ नहीं कर सकती। अभी मैं आज आपको बताने आया हूं, एक बम ब्लास्ट हुआ था 22 में भूपति नगर में, 3 लोग मारे गए। मुझे बताओ भाई, बम ब्लास्ट करने वालों को मजबूती से जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जरा जोर से बताओ, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? इसकी जांच हाई कोर्ट ने एनआईए को दी और ममता दीदी एनआईए पर केस रजिस्टर कर बम ब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है। ममता दीदी, शर्म करो। आप बम ब्लास्ट के आरोपियों को बचाना चाहती हो। आप चिंता मत करिए बंगाल वालों, हाई कोर्ट ने एनआईए को जांच दी है, सबको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा। आप चिंता मत करिए। ये बंगाल में एक जमाने में रविंद्र संगीत गूंजा करता था, अब बंगाल में बम धमाकों की गूंज गूंजाई देती है। बंगाल में एक भी इंडस्ट्री नहीं आती, विकास नहीं होता है। पूरा देश विकसित रास्ते पर आगे बढ़ गया, हमारा बंगाल पिछड़ता जा रहा है। समय आ गया है ये टीएमसी के कटमनी वालों को जगह दिखाने का। ये चुनाव है जो मोदी जी का चुनाव है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। और मित्रों, मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, ममता दीदी, आप तो महिला मुख्यमंत्री हो। एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, संदेश खाली जैसी शर्मनाक घटना में भी आप पॉलिटिक्स कर रही हो। सालों तक आपके नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार होता रहा, तृणमूल कांग्रेस के गुंडे अत्याचार करते रहे। जब इसको पकड़ने गए, ईडी पर पथराव किया, जब हाई कोर्ट ने कहा तब सरेंडर किया। मैं आज ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, कुछ तुष्टीकरण कर वोट लेने के लिए संदेश खाली के गुनहगारों को लिए आप बचा रही हो, मगर पूरे बंगाल की माताएं बहनें ये देख रही है, जान गई है कि आप संदेश खाली के गुनहगारों के साथ। माताओं बहनों, मुझे बताओ, संदेश खाली के गुनहगारों को जो बचाते हैं, इनको कभी वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए? कौन बचा रहा है संदेश खाली के गुनहगारों को? जोर से बोलो, कौन बचा रहा है? तृणमूल कांग्रेस को जिताने का मतलब है संदेश खाली की तरह अत्याचार करने की छूट देना, और मोदी जी को जिताने का मतलब है सोनार बांग्ला की रचना करना। हमारे सुकांतु मजमूदार जी और खगेन जी, आगे आओ। हमारे सुकांतु मजमूदार जी और खगेन जी दोनों यहां से प्रत्याशी है। मुझे बताइए,
प्रचंड बहुमत से इनको जिताएंगे क्या? जोर से बोलो, जिताएंगे। यहां आया हुआ हर व्यक्ति 5 वोट कमल पर डलवाएगा। मैं माताओं बहनों को कहने आया हूं, आपका चुनाव है, संदेश खाली वालों को दंड देने का चुनाव है। आप कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? बटन तो जरूर दबाना, मगर इतने जोर से गुस्से से दबाना कि बटन बेलूर घाट में दबे और करंट कलकत्ते में ममता दीदी को लगे। आप जिताएंगे क्या? 26 तारीख को भारी मतदान करेंगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? 400 पार कराएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।